Hello students, good morning all of you. Dear students, let's continue the chapter, the cell. Okay, so dear students, we have discussed all the unique parts of the cell membrane, nucleus and cytoplasm. Okay, now we have also talked about the cell organelles. Okay, so but we know that the plants and animals are different, so their cells are different, and we have learned that some organelles are present in plant cell and not in animal. Some organelles are present in animals but not in plant. So let's see the difference between plant and animal cell. Okay, so here is the table, the characteristics of and the parts of the cell structure. Okay, and plant and animal cell. Let's see what structure present in plant and animal. Okay, so first is cell wall. Okay, so you can see that cell wall is present in plant cell and absent in animal cell. Okay, so you know there's an outer covering of cell that is called as cell membrane. Okay, that is the basic structure. Okay, but in plant there is another layer present over the cell membrane, that is called as cell wall. Okay, so this cell wall present in plant but not in animal. Okay, now cell membrane. So cell membrane basic to both cell membrane present in both plant and animals. Okay, now nucleus. So nucleus जो है nucleus also present in plant and animal cell, but their position is different. That in animal cell you can see nucleus is present centrally. Okay, so ये सेंटर में लोकेट होगा, एंड इन प्लांट सेल देयर इज एट पेरिफेरी, यानी कि वो थोड़ा सा साइड पे होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बिग वैक्यूल्स. ठीक है, क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ न्यूक्लियर इन्वेलप. ठीक है, सो न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर इन्वेलप. ओके, सो न्यूक्लियर इन्वेलप present in both plant and animal cell. Okay, nucleolus, the structure dark body that is present inside the nucleus, it also present in plant and animal cell. Okay, now plastids. So you know plastids are colored bodies. Okay, so these colored bodies are present in plant cell but not in animal. So in animal plastids are absent. Okay, now centrioles. So centrioles absent in plant cell but present in animal cell. Okay, so centrioles or you can say centrosome. Okay, so centrosome जो होता है वो आपके जस्ट न्यूक्लियस के पास होता है एंड इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल. ओके, सो ये प्लांट सेल में नहीं होगा. नाउ लाइजोसोम्स. सो लाइजोसोम्स इज स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स present in cytoplasm. So these are absent in plant cell and present in animal cell. Okay, its function is to destroy or digest the unwanted materials present in cell. Okay, now Golgi bodies. So Golgi bodies जो होगा प्लांट सेल में बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, मेनी एंड स्कैटर्ड, बहुत होंगे और फैले हुए होंगे. ठीक है, और एनिमल सेल में एक ही जगह होते हैं. ठीक है, बीच में मतलब कहीं भी इसकी पोजीशन होगी साइटोप्लाज्म में बस एक जगह होंगे. ठीक है, ओनली वन. ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, बट वो एक जगह पे होंगे. नाउ वैक्यूल. सो वैक्यूल्स आर बिग स्पेसेस. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल्स. ठीक है, ऐसे तो हम कह सकते हैं एब्सेंट है बट इट इज नॉट कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी एब्सेंट होगा. मे बी प्रेजेंट. ठीक है, बट प्रेजेंट अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, और फ्यू एंड स्मॉल, छोटे छोटे से होंगे बट स्मॉल होंगे. बट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे और दे आर लार्ज. ठीक है, वो बड़ी बड़ी होती हैं. सो जस्ट लुक एट द पिक्चर. ये है आपकी प्लांट सेल और इधर है एनिमल सेल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस इजीली कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनिमल सेल से डिफरेंट है एंड देयर इज अ पार्ट्स ऑफ सेल कि दोनों में क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं. ओके, क्लियर? Okay, dear students, let's solve the exercise of the chapter. Okay, MCQs, fill in the blanks, so we can understand the concept better. Okay, now okay, so first exercise MCQs. Okay, now question number 1, cell was discovered by, you know very well,
Cell was discovered by Robert Hooke. Okay. Now, the longest cells are. Okay, just see 4 different options, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके रॉबर्ट हुक राइट आंसर है, ठीक है. रॉबर्ट ब्राउन क्यों नहीं है? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, एंड लुवेन हॉक ने फर्स्ट बैक्टीरियल सेल देखा था, एंड चार्ल्स डार्विन जो है उनका सेल से कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया था. ओके, तो यहाँ पे इन तीनों का कोई रोल नहीं. राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल्स आर. लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी हैं? सबसे बड़ी सेल जो आपकी 100 सेंटीमीटर हाई लेंथ को जो है अटेन कर सकता है, दैट आर नर्व सेल्स. ओके, नाउ दिस इज नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल. सो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? सेल वॉल. यस, ऑब्वियसली सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. नाउ these are kidney shaped structures present in the leaves of the plant. So kidney shaped structures जो हैं वो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं, जो कि स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज करती हैं. ओके, now these are hereditary units. So genes are the hereditary units that are present in nucleus. Okay, now several organs join together to form. बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फाउंड इन ह्यूमंस कैन चेंज देयर शेप. तो ह्यूमन में कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो अपना शेप चेंज कर सकती हैं? दैट आर WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, ये अमीबा की तरह अपना शेप बदलती हैं, प्रोजेक्शंस निकालती हैं, और फॉरेन मटेरियल्स जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इनगल्फ करती हैं. ओके, नाउ last question is, these are colorless plastids. You know 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast, leucoplast. तीनों दिया हुआ है and none of the. तो आपको क्या लगता है? क्लोरोप्लास्ट जो होंगे ग्रीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स के लिए होते हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते हैं. सो आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट. ओके, so second exercise, fill in the blanks. Question number 1, chemical reactions within the cells take place in the cytoplasm. Okay, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. नाउ सेकेंड, सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ. सो ऑब्वियसली प्लांट की सेल वॉल को पूछ रहा है, सो प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. ओके, नाउ व्हाट सेल्स आर स्मॉलेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी. ओके, सो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की, वो सबसे छोटी सेल्स होती हैं. ओके, नाउ द लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेल के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं उनको सेल्स ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ओके, नाउ स्पेरिकल बॉडी फ्लोटिंग इन द सेल साइटोप्लाज्म. सो स्पेरिकल यानी कि गोल सा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? यस, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि इसमें जो है आपके 2 बिल्कुल सही मैच किया है और 2 हमें जो है मैच करना है. तो फर्स्ट क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स कि प्रोटीन सिंथेसिस किससे रिलेटेड है? राइबोसोम्स. ठीक है, वो सामने ही लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट वैक्यूल. सो वैक्यूल का मतलब है कि वैक्यूल कहाँ पे होंगी? प्लांट सेल में. ठीक है, नाउ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. सेल ऑर्गेनिज्म विद डिसॉल्विंग एंजाइम्स, जिसके अंदर डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो लाइसोसोम है. ओके, ओके, नाउ राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ओके, सो आई विल राइट ओनली लेटर T and F. Okay, but you will write true and false. Okay, now the cells observed by Robert Hooke in a slice of cork were living cells. No, कॉर्क में एक्चुअली जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, और उन्होंने भी जो देखा था वो डेड सेल्स थी. ओके, यानी कि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, वो डेड सेल्स थी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ पैरामीशियम हैज इनडेफिनिट शेप. नो, पैरामीशियम हैज डेफिनिट शेप एंड इट्स शेप इज लाइक स्लीपर. ठीक है, एक चप्पल के जैसा उसका शेप होता है. नाउ द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. नो, बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है. सेल्स से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म. सो हम बेसिक यूनिट ऑर्गन को नहीं कहेंगे, क्या होगी? सेल. दैट इज ये फॉल्स. नेक्स्ट, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स कंटेन सेल मेम्ब्रेन. यस, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती हैं, बट सेल वॉल जो होगी वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
Okay, the last one is answer in one word. The outermost non-living covering around a plant cell, it is cell wall. Okay, तो cell wall जो होती है वो non-living है. Now, the control center of the cell, it is nucleus. Now, plastids containing colored pigment, वो plastid जिसमें कि colored pigment होते हैं, that are chromoplast. Okay, now group of similar cells performing same function. तो एक सेल की एक ही तरह की सेल्स होंगी और एक ही फंक्शन करेंगी, दैट आर कॉल्ड एज टिश्यूज. ओके फ्रेंड्स, योर क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट में बी हेल्ड एट द एंड ऑफ जुलाई. ओके, सो आप अपने जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ते रहिएगा. ठीक है, उनके एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीट करते रहिएगा. ठीक है, और अगर एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं हुई हैं तो मैं लास्ट वाले चैप्टर्स जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके एक्सरसाइज भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी. ओके.